عید تو ہوئے گی یا عید تو ہوئے گی جڑا میں لا لیا؟ یہ کس کے لیے؟ یہ بھی الگ سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں بیک اپ پہ. تو دونوں سے ہوگا. اس کو رکھتے ہیں. ہیلو 1 2 3 مائک ٹیسٹنگ. ہیلو. آج کا پروگرام کہ مسیحیت میں نجات ہے یا نہیں، اور مناظرہ طے پایا جناب حکیم عمران ثاقب اور پادری شفیق کمل. آج شانتی نگر میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم نے اس مناظرے کا انعقاد کیا ہے. آپ سب کو ویلکم. جی لیکن آج لائٹ بڑی شارپ ہے اکھاں سے جڑی سے. چل کوئی ہاں جی مسیح میں آپ کا خادم منیر انجم آج کے مناظرے کا ماڈریٹر کے طور پہ میں اپنے فرائض سر انجام دوں گا. آج کے مناظرے کا عنوان ہے مسیحیت میں نجات نہیں، اور یہ مناظرہ شانتی نگر میں ہونے جا رہا ہے، جس میں مسلم اپالوجسٹ جو ہیں وہ حکیم عمران ثاقب صاحب ہیں اور ان کے معاون قاری عبدالعزیز صاحب ہیں، اور مسیحی کرسچن اپالوجسٹ مسیحی مناظر پادری شفیق کمل صاحب ہیں اور ان کے معاون جو ہیں وہ ڈاکٹر ریورنڈ اے پی جشوا صاحب ہیں. حکیم ثاقب صاحب کا دعویٰ ہے کہ مسیحیت میں نجات نہیں، اور پادری شفیق کمل صاحب اس دعوے کے جواب میں ثابت کریں گے کہ مسیحیت میں نجات ہے. 45 منٹ کی پریزنٹیشن ہوگی، اس کے بعد 25 سے 30 منٹ کا ریبٹل ہوگا. اس کے بعد دونوں جو مناظر ہیں ان کے پاس 6 منٹ ہوں گے کہ وہ کنکلوڈ کریں. شکریہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی، تو چونکہ حکیم صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیحیت میں نجات نہیں، تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مدعا پیش کریں. شکریہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا. ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک پڑھتے جائیے. اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ایمان اور نیک عمل، شریعت پر عمل کرنے پر زور دیا گیا، اور جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے ان کو ملعون قرار دیا گیا کہ وہ لعنتی ہیں. تمام انبیاء کی یہ تعلیم ہے، خدا کی یہ تعلیم ہے، اس کے انبیاء کی یہ تعلیم ہے. بڑا پڑا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، متعدد مثالیں. آگے آ جائیے. سیدنا مسیح ابن مریم، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ بالکل جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے، تائید کی ہے حضرت مسیح نے ان تعلیمات کی. ایمان اور عمل ان کو لازم و ملزوم قرار دی ہے. مگر حضرت مسیح کے بعد جب ہم جناب پال کی شخصیت پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل ایک ہے اور اس میں نظریہ نجات دو ہیں. پہلا نظریہ نجات وہ ہے جو حق ہے، جو خدا کی تعلیم ہے،
जो अंबिया मुकद्दसीन की तालीम है, जो अंबिया मुकद्दसीन की तालीम है और जो सैयदना मसीह इब्न मरियम की तालीमात हैं, वो हक है। और वो क्या है? ईमान लाओ और नेक आमाल करो, शरीयत पर अमल करो, ये हक बात है। इसके बरअक्स एक तालीम जो नज़रिया नजात का मिलता है बाइबल में, वो जनाब पाल का है। जनाब पाल का नज़रिया नजात आज मसीहत का नज़रिया नजात है। जनाब पाल का नज़रिया नजात खुदा की तालीम के ख़िलाफ़, अंबिया मुकद्दसीन की तालीमात के ख़िलाफ़, हजूर यस्सु अल मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। हम देखते हैं कि पहले हम सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात देखेंगे बाइबल में से, और उन तालीमात के बाद हम देखेंगे कि आज मसीही हज़रात जो हैं वो खुदा की तालीमात को छोड़ के, अंबिया मुकद्दसीन की तालीमात को छोड़ के, हजूर यस्सु अल मसीह की तालीमात को छोड़ के वो खुद साख्ता नज़रिया नजात बनाए बैठे हैं। और मेरा ईमान है कि नजात उस बात में है जो खुदा की तालीम है, अंबिया मुकद्दसीन की तालीम है, हजूर यस्सु अल मसीह की तालीमात हैं, नजात उसमें है। जो बाद में गढ़ी गई है, जो खुदा की तालीमात के ख़िलाफ़, हजूर यस्सु अल मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है, वो नज़रिया नजात नहीं है, बल्कि वो इब्लीस का रास्ता है, उसमें कोई नजात नहीं। आज मसीही हज़रात हज़रत मसीह की तालीमात पर नहीं, खुदा की तालीमात पर नहीं, अंबिया मुकद्दसीन की तालीमात पर नहीं, बल्कि बाद के खुद साख्ता नज़रिया नजात पर है। बाइबल खोलिए, इस्तिस्ना 27 बाब है, उसकी 26 फ़िक्रा है, तो लिखा है लानत उस पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए उन पर कायम ना रहे, और सब लोग कहें आमीन। यानी वो लोग मलाऊन हैं, लानती हैं, जो खुदा के आइन खुदा ने अता किया है उसको छोड़ देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। आगे चलिए, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यूहन्ना की इंजील है 14 बाब का 15 फ़िक्रा है, हज़रत मसीह फरमाते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हज़रत मसीह फरमाते हैं जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरा फॉलोवर होगा, मेरे नक्शे कदम पर चलेगा, वो अंधेरे में ना रहेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। अब आप देख लीजिए कि आज कोई भी हज़रत मसीह की तालीमात नहीं करता, बेफ़ायदा उनका नाम लेते हैं। हज़रत मसीह की तालीमात मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसीलिए मेरा दावा है कि मसीही मज़हब में नजात नहीं है, क्योंकि इनकी नजात वो नहीं जो खुदा ने तालीम दी है, इनकी नजात वो नहीं जो अंबिया मुकद्दसीन ने तालीम दी है, इनकी नजात का नज़रिया वो नहीं जो हजूर यस्सु अल मसीह ने तालीम दी है, बल्कि उसके बरअक्स खुद साख्ता नज़रिया नजात है। हज़रत मसीह की तालीमात क्या हैं? आप देखिए, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कफ़ारा के ज़रिए नजात की तालीम नहीं दी। हज़रत मसीह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि अगर तुम मेरी सलीबी मौत पर ईमान लाओगे तो नजात मिलेगी, बल्कि सैयदना मसीह ने तौबा की, रास्तबाजी की, इख्तियार करने की तालीम दी है। हज़रत मसीह ने वाज़े तौर पे कहा है कि हुक्मों पर अमल करो। हज़रत मसीह ने नजात उखरवी के लिए अहदनामा कदीम से भी सख्त अहकाम और कवानीन पेश किए हैं। चंद मिसालें आपके लिए मैं पेश करता हूँ। मती 13 बाब 49 फ़िक्रा आप देखिए, हज़रत मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीहों और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना हो सकोगे। कितनी बड़ी बात है, और ये हज़रत मसीह की तालीमात। अगर आसमानी बादशाही में दाखिल होना है तो इन फ़कीहों और फरीसियों से भी ज़्यादा तुम्हें रास्तबाज होना पड़ेगा। और रास्तबाज कौन है? जो खुदा के आइन पर अमल करता है, जिस बात का खुदा ने हुक्म दिया है उस पर अमल करता है, जिससे खुदा ने मना किया है उससे रुक जाता है, वो
اب واضح ہو گیا کہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ شریروں کو اور راست بازوں کو الگ کیا جائے گا. شریر جلیں گے جہنم میں، آگ کی بھٹی میں جائیں گے، اور جو راست باز ہیں وہ جنت میں جائیں گے. ان کا ٹھکانہ جو ہے ان کو الگ کیا جائے گا، فرشتے نکلیں گے اور الگ کریں گے. اب جناب کا دعویٰ یہ ہے کہ نجات صرف مسیحیت میں ہے، جبکہ بائبل آپ کے اس دعوے کے خلاف ہے. اعمال 10:35 کے اندر لکھا ہے خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا ہے اور راست بازی اختیار کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے. بلکہ حضرت مسیح نے تو اس سے بھی واضح فرمایا ہے کہ پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آئیں گے، وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوں گے، اور تم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، مسیح کو خداوند کہنے والے ہیں، تم اپنے آپ کو باہر نکلا ہوا پاؤ گے. یعنی ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ یہ سارے لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ جائیں گے، اور یہ جو یسوع کو خداوند کہتے ہیں یہ خود کو باہر نکلا ہوا پائیں گے. تو یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ نجات صرف مسیحیت میں ہے، بلکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. کوئی قوم ہو، کوئی مذہب ہو، دنیا کا کوئی گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے، اس کے آئین پر چلتا ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. تو یہ جناب بائبل میں. عہد نامہ قدیم میں جیسا کہ میں نے ابھی واضح کیا کہ وہ لوگ جو شریعت پر عمل نہیں کرتے لعنتی ہیں، جو ملعون ہیں. لعنتی کا معنی یہ ہے، مطلب ہی یہ ہے کہ جسے خدا اپنی رحمت سے دور کر دے، ددکار دے، وہ لعنتی ہے. لعنتی کی نجات نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر خدا نے پھٹکار ڈالی ہے، وہ لعنتی ہے. تو عہد نامہ قدیم میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں نا. اب آتے ہیں ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں. حضرت مسیح متی 5:19 میں یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا، شریعت کی بات ہو رہی، چھوٹے سے چھوٹا حکم، کوئی بڑے حکموں کی بات نہیں، چھوٹے سے چھوٹا حکم اس کو بھی توڑے گا، یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. یہ چھوٹے حکموں کی بات ہو رہی ہے، بڑے کی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا حکم. اور جن لوگوں نے اس شریعت کو لعنت کا نام دے کے اور فضل کا جو ایک اپنا تعلیم دے کے اب ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، حکموں کی ضرورت نہیں ہے، تو ان تو خود حضرت مسیح کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور کوئی ایک میرا جملہ نوٹ کرے جناب پادری شفیق کمل صاحب، حضرت مسیح کا ایک فرمان صریح العبارت ہو، آپ کو اس کی تعویل نہ کرنی پڑے. حضرت مسیح نے فرمایا ہو کہ اب شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اب فضل کا دور ہے. حضرت مسیح تو فرما رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا حکم اگر اس پہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا اور یہ آدمیوں کو سکھاتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. آپ کی نجات تو گئی، آپ کی تو ساری زندگی جو ہے وہ اس بات سے عبارت ہے کہ شریعت کی ضرورت نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت. شریعت کے آپ مخالف، شریعت کے خلاف آپ تعلیم دے رہے ہیں. جو خدا کی تعلیم، انبیاء مقدسین کی تعلیم، حضور یسوع المسیح کی تعلیم ہے، اس کے خلاف آپ تعلیم دے رہے ہیں. اور حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا. حضرت مسیح نے نجات کے لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے بھی سخت احکام جو ہیں وہ ان کو منسوخ کر کے ایک نئی تعلیم بعض باتوں میں دی ہے. مثال کے طور پہ حضرت مسیح فرماتے ہیں، متی 5:30 آپ پڑھیے، 5 باب کی 30 پڑھیے، کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا. پس اگر تیری دانی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے،
क्योंकि यही तेरे लिए बेहतर है कि तेरे अज़ा से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जो है जहन्नम में ना डाला जाए। अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए, जहां इनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा। अब हजरत मसीह फरमा रहे हैं ज़ना करने वाला नहीं, ज़ना की नीयत से किसी औरत को देख लिया, हजरत मसीह फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। अगर बचना चाहता है अपनी आंख का वो डेला निकाल कर बाहर फेंक दे, ये उससे बेहतर है कि इसकी आंख का एक डेला निकल जाए, वरना सारा बदन उसका जहन्नम में जलेगा। तो मुझे जरा इस असूल पे कोई मसीही बचता है कि जो जहन्नम ना जाए? आज आप देखें पूरे यूरोप का हाल क्या है, पूरा इंडस्ट्रियों के मालिक वो है, बदकारी और बेहयाई और क्या क्या नहीं है। कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि उसने ज़िंदगी इस हद तक तो शायद कोई दावा करे कि मैंने बदकारी नहीं की, मगर इस बात का दावा करना कि उसने कभी शहवत की नज़र से किसी औरत को देखा नहीं, इतना बड़ा मुबालगा है। और हज़रत मसीह के इस कौल के मुताबिक जब तक अपनी आंख निकाल के नहीं फेंकोगे तुम्हारा सारा बदन जहन्नम में जाओगे। कहाँ गई नजात? सारी नजात तो गई, नजात का प्रोग्राम जो है वो तो खत्म हो गया। कोई एक मिसाल पूरी दुनिया से मुझे पेश कर दें, कोई एक शख्स जिसने बदकारी की हो और बदकारी की वजह से, ठोकर खाने की वजह से उसने अपने अज़ा को काट के फेंका हो, ठोकर खाने की वजह से उसने अपनी आंख को निकाल के फेंका हो, एक भी नहीं। मेरा ईमान है कि हज़रत मसीह सच्चे हैं, उनकी बात जो उन्होंने फरमाई है वो हक है, सच है। अगर हज़रत मसीह सच्चे हैं तो मसीही मज़हब में नजात कोई नहीं है। हज़रत मसीह ने फरमाया जब तक वो अपनी आंख का डेला निकाल कर फेंक नहीं देता, ठोकर खिलाई है तो अपना उज़व काट नहीं देता, उसकी निजात कोई नहीं है। ये हज़रत मसीह फरमा रहे हैं, मैंने कोई आज खुद बात नहीं बनाई है। मैंने अर्ज़ किया कि पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि शरीयत पर अमल करो। चले वो ओल्ड टेस्टामेंट, हम न्यू टेस्टामेंट से सैयदना मसीह इब्न मरियम की तालीम पेश करते हैं। हज़रत मसीह फरमाते हैं, आपने वो उसकी बात तो सुनी होगी, वो दौलतमंद आदमी है और वो कहता है मैंने हुक्मों पर अमल किया है। तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि अगर हुक्मों पर अमल करता है तो इसके बाद तकाजा उससे ये किया गया है, वो पूछता है कि नेक उस्ताद मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? तो उसे जवाब मिलता है तू हुक्मों को जानता है, जना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा मैं लड़कपन से इस पे अमल कर रहा हूँ, इन पे तो मैं अमल कर रहा हूँ। तो हज़रत मसीह फरमाते हैं कि अब तक तुझ में एक बात की कमी है। क्या कमी है? फरमाया अपना, अमीर आदमी था, दौलतमंद आदमी था, कहा अपना सब कुछ बेच कर बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। अब इस बात से पता चलता है, ये लूका 18 तो 24 है, यीशु मसीह से देखकर फरमाते हैं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाका से गुजरना आसान है मगर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिला ना होगा। अब मुझे बताएं, जितने दौलतमंद हैं बदकार गए वो निकल गए, और जितने दौलतमंद हैं वो भी, उनका जाना ऐसा ही मुश्किल है जैसा सुई के नाके से ऊंट का गुजरना मुश्किल है। वैसे पादरी साहब दौलतमंद आदमी हैं और ये हुक्म आपके लिए भी है। तो जिसकी आंख ने ठोकर खिलाई, हाथ ने ठोकर खिलाई, पाँव ने ठोकर खिलाई, उनकी निजात को नहीं हो गया। उन्होंने अपना जब तक काट के फेंकते नहीं और कोई नहीं रह गया, आ गया दौलतमंद।
दौलतमंदों की निजात कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो अब मुझे हज़रत मसीह का फरमान मैंने पेश किया। उस वक़्त तक जब तक अपनी ये सारी दौलत बेच के वो मसीह के पीछे नहीं हो जाता, फरमाया ऊँट का सुई के नाके से गुजरना मुमकिन है, दौलतमंद का आसमानी बादशाही में दाखिल होना मुमकिन कोई नहीं है। तो वो भी गए जिनको ठोकर खाई थी, सिर्फ ख्वाहिश की थी ज़िना की, उनकी भी निजात कोई ना। जो दौलतमंद हैं उनकी भी निजात कोई ना। तो कहाँ गई निजात? और ज़ाहिर है हमारे जो है वेस्ट के जितने भी ममालिक हैं, हमारे जो मगरबी ममालिक हैं, वो एक सूद के ज़रिए से पूरी दुनिया को उन्होंने एक जकड़ा हुआ है। वो खुदा के लिए किसी को कुछ नहीं देते, अबलीस के लिए जनाब वो सूद देना, सूदी कारोबार करना। तो ये सारे तो गए भाई हज़रत मसीह के फरमान के मुताबिक, तो इनकी भी निजात ना हुई। अच्छा, चूँकि हमारा मौजू सिर्फ मसीहत से मुतल्लक है, अगर आप देखें ना यहूदियत, उसमें ये नहीं था कि कोई दौलतमंद ना बने, उसमें ये नहीं था। उसमें ये था जायज़ तरीके से जितनी मर्ज़ी दौलत इकट्ठी करो, मगर उसमें से जो दायकी है वो दे दो, बाकी तुम्हारा माल जायज़ है तुम्हारे ऊपर। इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है, जितनी मर्ज़ी जायज़ तरीके से दौलत इकट्ठी करो और जो उसके ऊपर ज़कात है वो उसकी अदा। मसीहत में दौलत इकट्ठी करने से तो यस्सु मसीह ने मतलब मना किया हुआ है, साफ कहा हुआ है कि अपनी ये सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दे। कोई है मसीही, कोई एक मिसाल, एक एनीवन, पूरी दुनिया से कोई एक मिसाल पेश की जा सकती नहीं, बल्कि जितने दौलत के हरीस ये हैं। मेरे अपने शहर गुजरांवाला का हाल ये है कि चर्च की ज़मीनें बेच बेच कर इतने अमीर हो चुके हैं ये मसीही हज़रात। तो इतने बड़ी मिसालें हैं, आपके यहाँ भी होंगी, कराची में भी हम शोर सुनते रहे हैं। तो बात ये है कि जितने दौलत के ये हरीस हैं, तो ये तो लूट मार करके दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। हज़रत मसीह साहब फरमा रहे हैं कि सुई के नाके से ऊँट गुजर सकता है, मगर दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर वो पूछता है, यीशु मसीह से सवाल करता है कि ऐ खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? मसीह ने जवाब दिया, जाँ फशानी करो। क्या मतलब है जाँ फशानी करने का? तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्या मतलब है इसका? यही मतलब है ना कि मेहनत करो, कोशिश करो, जो उसके आईन है उस पर चलो, जिसका उसने हुक्म दिया उस पर अमल करो, जिससे उसने मना किया उससे रुक जाओ। तो फरमाया तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाज़ा खटखटाओ, ऐ खुदावंद हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। उस वक़्त तुम कहोगे कि हमने तेरे रूबरू खाया, हमने तेरे बाज़ारों में तालीम दी, तेरे नाम से बदरूहों को निकाला। ये किसकी बात हो रही है? ये शफाइया क्रूसड मुनक्कद करने वाले और ये पादरी साहबान, उनकी बात हो रही है। यस्सु को खुदावंद कहने वाले, उनकी बात हो रही है। ये कहेंगे हम तेरे हैं, हमने तेरे नाम के साथ ये किया, बदरूहों को निकाला, फलां किया। वो कहें निकल जाओ बदकारो, मैं नहीं तुम्हें जानता, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, निकल जाओ। मैंने पहले भी ये हवाला दिया। मसला क्या था? पादरी साहब इनकारी हैं शरीयत के और फजल के दौर के मनाज हैं। जब मैंने ये हवाला दिया, चूँकि उसके बाद मेरी बारी नहीं थी, तो मैंने कहा आज मैं पहले ही ज़रा पकड़ लूँ इस पर। जब पादरी साहब आए, इस बात का इन्होंने जवाब ये दिया कि जी वो तो बात ये है कि यीशु मसीह उनसे कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, मुझे पिलाया नहीं, मैं नंगा था, मुझे कपड़ा नहीं दिया। तो ये क्या है? ये शरीयत के हुक्म है, ये शरीयत के हुक्म है ना। खुदा की राह में माल खर्च करना ये शरीयत का ही हुक्म है ना, भूखों को खिलाना शरीयत का हुक्म है ना। और ये सारे, तो बात क्या हुई? नजात के लिए ईमान भी ज़रूरी है और शरीयत पर अमल करना भी, अमाल भी ज़रूरी है। ये अमल है ना, नेकी है ना। कोई नंगा है, हम उसको कपड़ा पहना देते हैं, नेक अमल है। कोई भूखा है, हम उसको खिला देते हैं, नेक अमल है। कोई प्यास है, हम उसको पानी पिला देते हैं, तो ये नेक अमल है। तो मेरा दावा सच साबित हुआ
नजात के लिए एक ईमान ज़रूरी है, दूसरा अमाल सालिया ज़रूरी हैं। और ये बात हज़रत मसीह की तालीमात से साबित हो रही है। अच्छा, हज़रत मसीह उनसे फरमाएंगे तुम सब दूर हो, निकल जाओ बदकारो, तुम सब दूर हो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम, इसहाक, यकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल, ये देखें सारी उम्मतें, सारे नबियों की उम्मतें वो खुदा की बादशाही में शामिल होंगी। और ये यस्सु के नाम लेवा जो हैं, नाम लेते हैं मसीह का, पैरवी पौलुस की करते, नाम लेते हैं पौलुस का, पैरवी रूमी कलीसिया की करते हैं, नाम लेते हैं जनाब मसीह का, और खुद साख्ता तलीमात पर अमल करते हैं। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि तुम अपने आप को बाहर निकला हुआ पाओगे। तो बाकी सारे वो खुदा की बादशाही में होंगे, मगर तुम अपने आप को बाहर निकला हुआ देखोगे। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्कन से लोग आकर खुदा की बादशाही में शरीक होंगे। ये लूका आप देखिए 13 बाब, मती आप देखिए 7 बाब, ये ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सारे लोग, सारे नबियों के पैरोकार, सारे नबियों के उम्मतें वो खुदा की बादशाही में। आप लोग खारिज होंगे। मसीह आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं तुम्हें जानता, मैं तो पहचानता भी नहीं। वजह यह है कि आप लोगों ने तमाम अंबिया की तालीमात को छोड़ा, हजूर यस्सु मसीह की तालीमात को छोड़ा, खुदा की तालीमात को छोड़ा, और अपनी खुद साख्ता तालीमात जो है उन पे अमल किया, अपना खुद साख्ता एक नज़रिया नजात बनाया जो खुदा की तालीम के ख़िलाफ़ है, अंबिया मुक़द्दसीन की तालीमात के ख़िलाफ़ है, हजूर यस्सु अल मसीह की तालीमात के ख़िलाफ़ है। तो लीजिए जनाब, आपकी नजात का तो कबाड़ा हो गया, ये सारे, और आप वहाँ से खारिज, आप वहाँ से निकले हुए। मेरी अगली दलील ये है कि नजात के लिए पहली शर्त ईमान की है। हवाला नोट करें, यकूब का खाता है 2 बाब की 4 फिक्रा है, लिखा है ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। ये बात कब लिखी जा रही है? हजरत मसीह के बाद। यकूब का खत हजरत मसीह के बाद लिखा गया है। अगर वो फजल का दौर था, अगर शरीयत पे अमल नहीं करना था, अमाल की ज़रूरत नहीं थी, तो ये जनाब यकूब के ख़त में वो क्यों ये लिखते? उन्होंने लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और जो चीज़ मुर्दा होती है, हम जानते हैं, जो मुर्दा होती है वो किस काम की होती है? वो फेंक दी जाती है, भाई किसी काम की नहीं होती, उसमें रूह ही नहीं होती। तो ईमान को जिंदा करते हैं तो आमाल जिंदा करते हैं, नेक अमाल। तो उसके लिए, नजात के लिए शर्त अव्वल ईमान, शर्त दोम आमाल। ये मेरा दावा था, और ये दावा आपकी मुकद्दस किताब से, जनाब यकूब के ख़त से ये साबित हो रहा है, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अब मसीहियों के पास ना तो अमाल हैं ना ईमान हैं। अमाल के बारे में क्या कहते हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। गिलतियों 3:13। अच्छा, अब जी शरीयत की ज़रूरत नहीं रही, अमाल गए। शरीयत पर अमल करना ये अमाल है ना। कोई शरीयत हो, दुनिया का कोई मज़हब हो यार, आसमानी मज़हब हो या गैर आसमानी मज़हब हो, किसी मज़हब की शरीयत के अंदर बुराई की तालीम नहीं है। ये हिंदू हैं, बुत परस्त हैं, बुतों के पुजारी हैं, आप उनकी शरीयत देख लें, उनकी शरीयत में भी नेकी की तालीम दी गई है, बुराई की तालीम नहीं दी गई। तो अमाल से आपने छुट्टी यूँ हासिल कर ली कि मसीह हमारी खातर मसलूब हो गया, और उसने उस शरीयत को, उसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली। जब वो दस्तावेज़ ही मिट गई है, जब वो दस्तावेज़ ही मिट गई है, एक तहरीर लिखी हुई है, हम उसको रिमूवर से साफ़ कर देते हैं, अब उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता।
तो वो तो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारी बाबत और हमारे खिलाफ थी, और उससे कीलों से सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। कुलसियों 14:2 ये जनाब पाल की तलीम है। आप देख लें, खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, अम्बिया मुक़द्दसीन की तलीमात के ख़िलाफ़, जनाब यकूब की तलीमात के ख़िलाफ़, जनाब हजूर यस्सु अल मसीह की तलीमात के ख़िलाफ़, और आप जनाब पाल की तलीमात पर हैं जो खुद साख्ता है। और ये जो बात खुदा के ख़िलाफ़ है, अम्बिया के ख़िलाफ़ है, यस्सु अल मसीह के ख़िलाफ़ है, वो बातिल है, वो झूठी है। तो जनाब पाल की तलीमात हजूर यस्सु अल मसीह की तलीमात के बिल्कुल बरक्स हैं। हजूर यस्सु अल मसीह की तलीमात दिन हैं, जनाब पाल की तलीमात रात हैं। अब आपने दिन को छोड़ के रात का लिबादा ओढ़ लिया तो नजात कहाँ आई? नजात तो गई। ये तो बात थी अमाल की। अब रह गया ईमान। मैंने अर्ज़ किया दो बातें लाज़िम व मलज़ूम हैं, एक ईमान और दूसरे अमाल। अमाल से छुटकारा हासिल कर लिया, ज़रूरत नहीं जी, दस्तावेज ही मिट गई है। वो रह गया ईमान। तो मसीहों में राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। आज तो हम गए गुजरे लोग हैं ना, हम मुसलमान भी गए गुजरे, आप मसीही भी गए गुजरे हैं। वो अव्वलीन लोग जो यस्सु अल मसीह के पैरोकार थे, जिन्होंने मसीह के साथ खाया पिया, हज़रत मसीह उनसे फरमाते हैं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता तो तुम इस पहाड़ से कहते ना तो ये भी जा समंदर में पड़ता। उनका हाल ये है, तो आप लोगों में ईमान जनाब वो तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। ना ईमान ना नेक अमल, दोनों बातें आप में नहीं। तो जब दोनों बातें नहीं हैं तो नजात नहीं है। हज़रत मसीह ने म्यार ईमान मुकर्रर किया है, ईमान का म्यार मुकर्रर किया है। और क्या किया है? जो ईमान लाए और बिप्तिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना होगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। अच्छा, ये मरकज़ 16 से 18 है। अब पता क्या है, इसमें जो मीठी मीठी बातें हैं ना, वो हज़म जगह जगह आपको शफाइया क्रूसीड वाले वो जो आपको नज़र आएंगे, वो बदरूहों को निकाल रहे हैं, लोगों को छू के शिफा दे रहे हैं, सारी ड्रामेबाजी वो कर रहे हैं। और जहाँ है ना कि जहर पियोगे तो कुछ ना, ये कोई नहीं करेगा। क्यों? पूरी बाइबल पढ़ जाइए, अव्वल ईमान दोम अमाल। अगर ईमान भी है अमाल नहीं है तो मुर्दा है। तो दोनों बातें लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो मसीहियों के पास ना ईमान है ना अमाल हैं। और मैं एक और बात कर दूं, नोट करें मेरी इस बात को, इसका जवाब चाहिए मुझे। इस बाइबल में से ईमान की तारीफ बयान कर दें, ईमान है क्या? बस इतनी गुजारिश है, ईमान है क्या? किसको आप ईमान कहते हैं? ईमान के अज्जा कितने, अरकान कितनी है, क्या है ईमान? अगर कोई कहे कि वो जी यस्सु मसीह की सलीबी मौत पे ईमान लाना ईमान है, तो फिर क्या मुझे पहले अंबिया की बताइएगा उनका ईमान क्या था। हज़रत मूसा उनके वारे, और यहाँ तक यस्सु मसीह से पहले तक ईमान कौन सा था? भाई आप तो ईमान की तारीफ नहीं कर सकते, नजात कहाँ से? और नजात के लिए ईमान और अमाल साले दोनों जो है वो लाज़िम व मलज़ूम हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो बात है मसीह की तालीमात। अभी मैं पेश करूँगा कि जनाब मसीह की तालीमात मैं पेश कर भी चुका हूँ, बाज़ और पेश करूँगा कि जनाब मसीह की तालीमात और हैं जो दिन हैं, और इसके बरक्स जनाब पाल की तालीमात और हैं जो रात हैं।
फिर सवाल पैदा होता है हमारे यहाँ ना, ये एक अजीब बात है कि मसीही मज़हब, मसीही होने का दावा करने वाले, उन सब की बुनियादी किताब अलग अलग है, कैनन अलग अलग है। मैं पादरी साहब से पूछता हूँ, ये जो कैनन है इस पर अमल करने वालों की निजात है, या ये जो कैथोलिक का कैनन है इस पर अमल करने वालों की निजात है? ये भी हमें ज़रा वाज़ेह कर दें, ज़रा हमें ये भी बता दें कि किसकी निजात है। और इससे आगे भी ऑर्थोडॉक्स, फिर एक और कैनन है, फिर एक चौथा भी कैनन है। तो कौन सा कैनन जो है म्यारे नजात है, किस पे अमल करेंगे तो नजात मिलेगी? अब हम कैथोलिक वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी इनकी तो कोई निजात नहीं, वो तो आपकी इस बाइबल को भी नहीं मानते, वो कहते हैं जी ये तो बाद के बिदती लोगों की बनाई हुई बात, वो इसको नहीं मानते। वो जिसे मादर कलीसिया कहा जाता है, ये उनका कैनन है। हमें ये सवाल नोट करें, इसका जवाब दें, इस कैनन को मानने वालों की निजात है कि नहीं है? फिर हमें जवाब दें कि जो यस्सु अल मसीह की तसलीस पर अकीदा नहीं रखते, तसलीसी नहीं है, वो मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहलवाते हैं। बड़े सारे हैं ऐसे, ओनली जीसस वाले हैं, तौहीदी हैं, और बड़े सारे हैं ऐसे जो अब तसलीस पर ईमान नहीं रखते हैं, बल्कि तसलीस को मुशरकाना और मुब्तदाआना एक अकीदा कहते हैं। जहाँ पे पादरी साहब हमें इसकी वजाहत भी फरमाएं कि जो तसलीस को नहीं मानते, क्या उनकी निजात होगी या नहीं होगी? तसलीस को मानने वालों की निजात है या तसलीस के मुखालिफिन की निजात है? ये कैथोलिक कैनन को मानने वालों की निजात है या दीगर कैनन को मानने वालों की निजात है? ये अहम सवाल है, नज़रअंदाज न फरमाइएगा। इस पे आज हमारा 5वां और फाइनल मुनाजरा है निजात के मौजू पर। इससे कबल जनाब शफीक कमल साहब खुद इन्होंने इकरार किया कि फ़लाँ फ़लाँ ने आपको जवाब नहीं दिए। ये सीनियर, मोस्ट सीनियर मुनाजरा है। हम ये चाहते हैं, हारना और जीतना मकसद नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई ये इश्कालात हैं, इनका जवाब दिया जाए। मैं आज 5वां मुनाजरा कर रहा हूँ इसी एक मौजू के ऊपर, और इनका कोई जवाब नहीं मिला। मुझे उम्मीद है जनाब पादरी शफीक कमल साहब जो हैं वो इन बातों का जवाब देंगे। अच्छा, अगली मेरी दलील, कोई ऐसा शख्स जो मसीही मज़हब छोड़कर किसी और मज़हब में चला जाता है, अब और मज़हब में गया, वो कहता है नहीं यार मुझे वापस मसीहत में जाना है। बाइबल कहती है कि वो दोबारा मसीही नहीं बनाया जा सकता, उसकी निजात कोई नहीं है। ये जनाब अबरानियों 6 बाब 4 ta 6 तक है। जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, वो रूह कुदस में शरीक हो गए, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है। ये भी गए, इनकी भी निजात कोई ना। बड़े सारे लोग हैं आजकल, तो बशीर जॉन ने भी काफ़ी नाक में दम किया हुआ है। तो अब आप चाहें कि अगर उसको दोबारा आप मसीही बना लें तो कोई ना भाई, वो बाइबल के ख़िलाफ़ है, नहीं बना सकते आप। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आपकी जो मसीही बेटियां हैं या मसीही बाज़ हज़रात लोग हैं जो मसीहत छोड़ के चले जाते हैं, तो भाई आप क्यों इतना पीछा करते हैं? आपकी बाइबल उनके खिलाफ है। आपकी बाइबल आपको मना कर रही है भाई उनको नया नहीं बनाया जा सकता तौबा से। जो निकल गए उनको निकलने दें, तो आ भी जाए, अगर बिलफर्ज आ जाएं तो उन बेचारों की निजात ही कोई नहीं है। ये जनाब की बाइबल है। अच्छा, अब ज़रा मैं थोड़ा सा तकाबल पेश करूँगा जनाब मसीह का नज़रिया निजात और मसीह के मुखालिफ मसीह जनाब पाल का नज़रिया निजात। आप देखें दोनों का नज़रिया निजात मुखालिफ है। मसीह की तालीमात हक हैं और मसीह के ख़िलाफ़ तालीमात बातिल हैं। मसीह की तालीमात नूर हैं और जो मसीह का मुखालिफ है उसकी तालीमात जो हैं वो अंधेरा हैं। अब देखिएगा हज़रत मसीह फरमाते हैं, जो अंबिया की तालीम है, ओल्ड टेस्टामेंट है, हज़रत मसीह उसकी तस्दीक फरमा रहे हैं। मसलन बुत परस्ती, बुरे अमाल, तमाम मकरूहात से तौबा करो, तौबा, तमाम मकरूहात से तौबा करो। हिजकियेल 14:6 है।
सैयदना मसीह ने बराबर तौबा पर जोर दिया, इतना जोर दिया। जनाब पाल भी कह रहे थे ना, तौबा से उसे नया नहीं बनाया जा सकता, जबकि हज़रत मसीह फरमाते हैं कि सारे रास्तबाज जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। ये जनाब मसीह की तालीमात हैं। लूका 15:3। मुक़द्दस पाल का नज़रिया नजात क्या है, जिस पे आज मसीही अमल कर रहे हैं, वो क्या है? जनाब पाल ने अम्बिया मुक़द्दसीन की तालीमात के ख़िलाफ़, सैयदना मसीह यस्सु की तालीमात के ख़िलाफ़ बुरे अमाल से तौबा, ईमान और अमल से रास्तबाजी की बजाय उन्होंने तालीम ये दी। रूमियों 5:19 पढ़ें, नजात के लिए कफ़ारा का खुद साख्ता नज़रिया वो करते हैं, पेश करते हैं। मसलन जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहराए जाएंगे। रोमियो 3:25, उसे यानी मसीह को खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफ़ारा ठहराया जो ईमान लाने से फ़ायदा मंद हो। ये जनाब पाल की तालीमात है, मसीह की तालीमात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत मसीह फरमाते हैं, अगर तू ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। हज़रत मसीह फरमाते हैं, हुक्मों पर अमल कर, ज़िंदगी में दाखिल होना। जनाब पाल कहते हैं, उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तहत थे, मौकूफ़ कर दी। हज़रत मसीह फरमाते हैं कि जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा। यूहन्ना 14:21। जनाब पाल इसके ख़िलाफ़ कहते हैं, जनाब यस्सु मसीह के ख़िलाफ़ कहते हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। अब आप जनाब मसीह की तालीमात देख लें, जनाब पाल की तालीमात देख लें, आपकी मर्ज़ी। जनाब मसीह की पैरवी करके नूर पर चलें, जनाब पाल के पीछे लग के अंधेरे के फर्जंद बने, आपकी मर्ज़ी। मैं तो तकाबल करके दे रहा हूँ आपको कि मसीह की तालीम ये है और जनाब पाल की तालीम ये है, और दोनों, एक तालीम नूर है, एक तरीक़ी है, एक दिन है, एक रात है। हज़रत मसीह फरमाते हैं मत्ती 5:17-19, जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वह आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो इन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वह आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। मत्ती 5:17-19 है। जनाब पाल मसीह की तालीमात को रद्द करते हुए कहते हैं, जी उसने हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा दी जो हमारे बाबत और हमारे ख़िलाफ़ थी, और उससे कीलों पर सलीब पर जड़कर सामने से हटा दिया। हम किसकी माने? जनाब मसीह की माने या जनाब पाल की माने? नजात की शर्त हज़रत मसीह के नज़दीक पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, रास्तबाजी फ़कीह और फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकोगे। और हज़रत मसीह ने, पता है उन्हें, और चूना फिरी हुई कब्रें करार दिया था। अब जानते हैं कि बाहर से बड़ी खूबसूरत है, इन पे पत्थर लगा लो, संगे मरमर लगा लो, चूना फेर लो, गच कर लो, कुछ भी कर लो, इनके अंदर क्या गंद है। वही बात है कि जो शख्स बाहर से जितना मर्जी खूबसूरत हो, जो मर्जी कर ले, अगर वो अहकाम पर अमल नहीं करता, ईमान नहीं लाता और खुदा की तालीमात पर अमल नहीं करता, तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने उनको उन चूना फिरी हुई कब्रों की मानंद जो है ना वो करार दी है। बल्कि हज़रत मसीह उनको वाज़े कहते हैं कि तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों, इंसाफ, रहम और ईमान को तुमने छोड़ दिया है, और जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे जनाब तो मालूम हुआ कि हज़रत मसीह फरमाते हैं कि जो ईमान भी लाजम है, आमाल भी लाजम है। और हज़रत मसीह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी जो है ना मासूमियत जो है वो बच्चों की मानंद नहीं ना होगे। कितनी प्यारी एक तमसील दी है कि बच्चा कैसा मासूम होता है। आप लोगों ने मसीह की सारी तालीमात को रद्द कर दिया। आपने जनाब कहा नहीं जी वो दस्तावेज़ ही मिटा डाली है। नहीं, जनाब मसीह की तालीमात के ये जनाब बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आपने देख लिया कि
के इलाही मनसूबा ये है जो अम्बिया की तलीम है, हजूर यसू अल मसीह की तलीमात है। तमाम किताबें पैदाइश से लेके मलाकी नबी तक और मती से लेके मुकाशफा तक सब की तालीमात ये यकसा है। एक बंदा जो बाद में जो ना कभी यसू मसीह को मिला ना उनका फैज़ याफ्ता, बाद में आने वाला, उसने आपको तबाह कर दिया, इधर आपको लगा दिया उसकी तलीम खुदा की तलीम के ख़िलाफ़, उसकी तलीम नबियों की तलीम के ख़िलाफ़, यसू अल मसीह की तलीमात के ख़िलाफ़। तो आपकी मर्ज़ी है आप उनकी पैरवी करें। ये जो नज़रिया है कि वो हुआ हमारी खातर मर गया, ये बेइंसानी कुर्बानी खुदा के नज़दीक जायज़ ही नहीं है, इसका हुक्म ही नहीं दिया है ही नहीं है। ये पैगन्स का तरीका है। आज भी हिंदुस्तान में आज बल्ली चढ़ाई जाती है इंसानों की। ये बुत परस्तों का तरीका था भाई। और इससे पहले बाल देवता की वो मशहूर है बातें, पता नहीं कितने ऐसे हैं जो मसलूब हुए, तो क्या क्या कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। ये पैगन्स का तरीका है। मसीह की तलीमात से आप ये साबित नहीं कर सकते हैं। मसीह की तलीमात वही हैं जो खुदा ने पहले नबियों के ज़रिए दी हैं। अम्बिया मुक़द्दसीन की तलीम वही है जो यसू अल मसीह ने उसकी तस्दीक की है, तलीम दी है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि 2 सलातीन 3:27 बनी इसराइल के मुखालिफ जो मुआबी में थे, जो बुत परस्त थे, ये उनमें रिवाज था, उन बुत परस्तों में इंसानी कुर्बानी करने का, बल्ली चढ़ाने का। इसका जिक्र हमें 2 सलातीन में मिलता है। बल्कि शाह मुआब ने अपने पलोटे बेटे को कुर्बान किया था, जिसके सबब इसराइलियों से मुआबियों को नजात मिली। ये बुत परस्तों का है भाई। तो इसका खुदा की तलीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। बुत परस्त जो थे वो पहलोटे को खुदा की नज़र करते थे। अबरानियों 1:6 में जनाब पाल ने यसू मसीह को खुदा का पहलोटा बना दिया, और वो जिस तरह बुत परस्त उसको सलीब पे चढ़ा के, वो बल्ली चढ़ा के वो नजात का नज़रिया रखते थे, वो जनाब वो नज़रिया बना दिया। तो ये बाद की खुद साख्ता बातें हैं। हालांकि उससे पहले खरूज 4:22 में लिखा है, इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलोटा है। तो पहला पलोटा गलत हो गया, जो बाद में दूसरा पलोटा बनाना पड़ा था। तो जे ठीक है। बस कितने हुए? 40 मिनट 40। हाँ बस ठीक है। मुझे एक बात ये करनी, नजात के लिए अगर फ़कत यसू मसीह के बह सलीब पर ईमान लाना काफ़ी है और अमल की ज़रूरत नहीं, तो इंसान गुनाह करे या नेकी करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और इंसान नेकी ही क्यों करे? लेकिन अगर नजात के लिए अमल की ज़रूरत है तो यसू मसीह का सलीब पर जो है खून बहना वो बेमानी है, बेमकसद है, क्योंकि इंसान अपने अमल के सबब जो है नजात पाएगा। तो ये कफ़ारा बेकार हुआ, सलीब चढ़ना बेकार हुआ। अगला मेरा सवाल वो भी नोट कर रहे कि नजात के लिए खुदा का मरना क्यों ज़रूरी है भाई? क्या खुदा इतना मजबूर है कि वो माफ़ नहीं कर सकता? वो खुद मरेगा, खुद जलील होगा, उसके मुंह पे थूका जाएगा, थप्पड़ मारे जाएंगे, मुक्के मारे जाएंगे, जलील करके मसलूब किया जाएगा, तब वो नजात दे सकता है। वैसे वो नजात नहीं दे सकता। क्या उसकी ये शायान शान है? तीसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा इस सिलसिले में, खुदा ने इंसानी नजात के लिए अपने मरने की तलीम नहीं दी, बल्कि पूरी बाइबल में आप पढ़ते जाइए। हाँ जी, अच्छा।